In the last lecture, we started a new chapter, chapter number 5, complex number. Okay, so equality of complex number. Let Z1 and Z2 are two complex numbers. Let Z1 and Z2 are two complex number. Okay. Let Z1 and Z2 are two complex number, and Z1 is equals to A plus iota B, and Z2 is equals to C plus iota D. मान लीजिए कि मेरे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, एक Z1 है और एक Z2 है. Z1 क्या है? A प्लस आयोटा बी. A इज द रियल पार्ट एंड आयोटा बी इज द इमेजिनरी पार्ट है. C इज द रियल पार्ट ऑफ Z2 एंड D is the imaginary part of Z2, है ना. So real part of Z1 is what? A, and imaginary part of Z1 is equals to what? B. Real part of Z2 is equals to what? Real part of Z2 is C, and imaginary part of Z2 is equals to what? D. Now given क्या है कि Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं. Z1 की वैल्यू हमें गिवन है, Z2 की वैल्यू हमें गिवन है. And when the two complex number Z1 and Z2 are equal, then the real part of Z1 is equals to real part of Z2, and imaginary part of Z1 is equals to imaginary part of Z2. When Z1 is equals to Z2, जब Z1 और Z2 क्या होंगे? इक्वल होंगे. जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होंगे तो जो हमारा फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका रियल पार्ट इज इक्वल टू द रियल पार्ट ऑफ सेकेंड कॉम्प्लेक्स नंबर. Then real part of Z1 is equals to real part of Z2, and imaginary part of Z1 is equals to imaginary part of Z2. कह रहा है कि जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होंगे, when the two complex numbers Z1 and Z2 are equal, then the real part of Z1 is equals to real part of Z2, and imaginary part of Z1 is equals to imaginary part of Z2. Mean to say the value of A is equals to C and the value of B is equals to D. Clear? So now we will discuss some problems based on equality of complex number. अभी क्वेश्चन कैसे आएगा इसके ऊपर. क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ find x and y if find the value of x and y if 3 upon root 5 of x minus 5 plus iota 2 root 5 y is equals to root 2. क्लियर. अब देखिए अगर इस लेफ्ट हैंड साइड को देखा जाए तो ये क्या है? रियल पार्ट है क्योंकि इसके साथ कोई आयोटा नहीं है. इस पार्ट के साथ कोई आयोटा नहीं है. और ये जो पार्ट है ये कैसा पार्ट है? दिस इज द इमेजिनरी पार्ट. अगर राइट हैंड साइड में देखा जाए तो अब मेरे पास पड़ा है रूट 2. इसमें रियल पार्ट तो है पर तो इमेजिनरी पार्ट नहीं है, तो हम कितना आयोटा लिखेंगे? 0 आयोटा. नाउ in the left hand side we have a complex number, in the right hand side we have again a complex number. Now when the two complex number are equal, the real part of this is equals to the real part of Z2, है ना, the real part of this complex number. Mean to say 3 upon root 5 of x minus 5, this is the real part, and this real part is equals to the real part of right hand side complex number. And at the same time 2 root 5 y is equals to what? 0. From here the value of y is equals to what? 0. The value of y is 0, and the value of x we will find from here 3 upon root 5 of x is equals to 5 plus root 2. Clear? And the value of x is equals to what?
√5 into 5 plus √2 upon what? 3. So this is the value of x. Clear? In the way we can find the value of x and y. The next problem is find x and y if x plus iota y into 2 minus 3 iota is equals to 4 plus iota. So this is the given equation and you have to solve this equation and you have to find the value of x and y. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे सिंप्लीफाई करेंगे और क्या करेंगे, इसे a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लेके आएंगे, a की कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लेकर आएंगे, हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे ना। तो x को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, इस पूरे पार्ट से, यानी x मल्टीप्लाई होगा किससे, 2 माइनस 3 आयोटा से, ऐसा लिख सकते हैं हम। फिर आयोटा y भी मल्टीप्लाई होगा किससे भाई, ये इससे पूरे से मल्टीप्लाई हो गया, फिर आयोटा y मल्टीप्लाई होगा किससे, 2 माइनस 3 आयोटा से, और किसके इक्वल 4 प्लस आयोटा। कितने आयोटा है, 1 आयोटा है ना, हाउ मेनी आयोटा दे रहे, 1 आयोटा। अब क्या होगा, x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बनेगा 2x। क्लियर? x को मल्टीप्लाई करना है माइनस 3 आयोटा से, बन जाएगा माइनस 3x आयोटा। आयोटा y को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 2 आयोटा y। क्लियर? और माइनस माइनस यहाँ हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 3y, और आयोटा का स्क्वायर बन जाएगा, किसके इक्वल बन गया ये, 4 प्लस 1 आयोटा, ऐसा बन गया। नाउ वी हैव 2x, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है, हम जानते हैं कितनी होती है, -1 होती है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, -1 इंटू -3y बिकम्स +3y। क्लियर? सो दिस इज द रियल पार्ट, और इन दोनों से आयोटा कॉमन आ जाएगा, आयोटा कॉमन आएगा तो यहाँ क्या रह जाएगा, माइनस का 3x, प्लस में क्या रह जाएगा 2y इज इक्वल टू व्हाट, 4 प्लस 1 आयोटा। क्लियर? नाउ द रियल पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, क्या यहाँ पर हमने क्या किया, रियल पार्ट को अलग कर दिया, इसके साथ कोई आयोटा नहीं है, और ये हमारा हो गया इमेजिनरी पार्ट जिसके साथ आयोटा प्रेजेंट है। इधर भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसमें ये है रियल पार्ट और ये क्या है, इमेजिनरी पार्ट। क्लियर? तो 2x प्लस 3y किसके इक्वल होगा, 2x प्लस 3y होगा किसके इक्वल, 4 के इक्वल, एंड माइनस 3x प्लस 2y किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। आयोटा हमने इधर से भी छोड़ दिया ना, तो आयोटा इधर से भी छोड़ दिया, फिर आयोटा से आयोटा हम कह सकते हैं कैंसिल हो गया दोनों से। अब हमें करना है इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व, ठीक है, और क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो क्लास 10th में हमने मेथड सीखा था 2 लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, तो हम एलिमिनेशन मेथड यहाँ यूज कर लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो क्या बनेगा, 3 2 6x प्लस 9y और इज इक्वल टू व्हाट, 12। इन द सिमिलर वे यहाँ पर बन जाएगा -6x प्लस 4y इज इक्वल टू व्हाट, 2। ऐड करेंगे क्योंकि साइन पहले से ही चेंज है, एडिंग करेंगे तो क्या होगा, दिस वन कैंसिल आउट एंड दिस इज 13y इज इक्वल्स टू व्हाट, 14। इट मीन्स द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल्स टू 14 अपॉन 13। द वैल्यू ऑफ y इज 14 अपॉन 13। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। पुट दिस वैल्यू ऑफ y, put value of y in equation number 1, in इक्वेशन फर्स्ट। ओके, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे इसकी वैल्यू को, तो क्या है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू कितना, 4 की इक्वल है, y की वैल्यू पुट करें यहाँ 14 अपॉन 13 इज इक्वल टू व्हाट, 4। सो दिस इज 2x प्लस 42 अपॉन 13 इज इक्वल टू 4। 2x इज इक्वल टू 4 माइनस 14 अपॉन 42 upon 13, and taking LCM we get 13 is LCM, 13 4 is 52 minus 42, this becomes 10, and the value of x is 5 upon 13. So in this way we can find the value of x and y. Next question is find the value of x and y. Find x and y if 1 plus iota whole square upon 2 plus iota is equals to
x plus iota y. You have to find the value of x and y. So in the left hand side we have to convert this part into the standard form of the complex number, that is a plus iota b. और जो हमारा राइट हैंड साइड है वो तो पहले से इसी फॉर्म में a प्लस आयोटा बी के फॉर्म में, तो हमें क्या करना है, इस लेफ्ट हैंड साइड को भी किस फॉर्म में लाना है, a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में लेके आना है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है कॉम्प्लेक्स नंबर का जो फॉर्म है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो स्क्वायरिंग ओपन कर देते हैं ऊपर, तो क्या होगा 1 का स्क्वायर प्लस में क्या आयोटा का स्क्वायर, और फिर होगा प्लस में 2 इंटू 1 इंटू आयोटा, दैट इज 2 आयोटा अपॉन 2 प्लस आयोटा, एंड दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, x प्लस आयोटा y. नाउ 1 स्क्वायर इज 1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1 होती है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -1, दिस इज 2 आयोटा अपॉन 2 प्लस आयोटा, एंड दिस इज इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y. +1 से -1 कैंसिल होगा, 2 आयोटा अपॉन 2 प्लस आयोटा. अब हमें क्या करना होगा, डिनोमिनेटर में क्या है हमारे पास आयोटा, और जब डिनोमिनेटर में आयोटा हो जाए तो हमें क्या करना होता है रैशनलाइजेशन. तो हम क्या करेंगे 2 माइनस आयोटा 2 माइनस आयोटा यहाँ लिख लेंगे, क्लियर. और क्या होगा, दिस इज इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y. 2 आयोटा को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या बन जाएगा, 4 आयोटा बन जाएगा. 2 आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, 2 आयोटा स्क्वायर बन जाएगा. और अपॉन में क्या, अपॉन में है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बिकम्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. क्लियर. यूजिंग द आइडेंटिटी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. इस आइडेंटिटी का हम यूज कर लिया, क्लियर. एंड दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, x प्लस आयोटा y, x प्लस आयोटा y. नाउ 2 इंटू 4 आयोटा माइनस 2, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है -1 अपॉन में 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी -1 इज इक्वल्स टू व्हाट, x प्लस आयोटा y. यूजिंग द कंडीशन यूजिंग बिकॉज आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1. क्लियर. नाउ ये बन गया हमारे पास कितना 2 प्लस 4 आयोटा, और डिनोमिनेटर में हमारे पास बन गया 5, एंड दिस इज इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y. 2 अपॉन 5 प्लस 4 अपॉन 5 इंटू आयोटा इज इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y. फ्रॉम हियर अगर हम देखिए क्या लेफ्ट हैंड साइड में भी कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट हैंड साइड में भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर. बाय कंपेयरिंग दिस टू कॉम्प्लेक्स नंबर वी कैन से दैट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू व्हाट, the value of x is equals to what 2 upon 5, and the value of y is equals to what 4 upon 5. So here we can find the value of x and y. Clear. The next problem is find if 1 minus iota upon 1 plus iota raised to power 100 is equals to a plus iota b, then find a comma b and find the value of a and b. तो क्या करना चाहिए हमें, अब पावर 100 को तो हम सॉल्व करेंगे नहीं, हम क्या करते हैं जो इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर का जो पार्ट है इसको हम क्या करेंगे रैशनलाइज कर देंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में आयोटा है. तो क्या बनेगा भाई 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा, रैशनलाइजेशन हम कर रहे हैं ऑन रैशनलाइजिंग दी डिनोमिनेटर, ऑन रैशनलाइजेशन. रैशनलाइजेशन करेंगे हम तो क्या बनेगा इनटू 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा रेज़्ड टू पावर 100 इज इक्वल्स टू व्हाट, a प्लस आयोटा b here. Clear. Now this is 1 minus iota, this is 1 minus iota becomes 1 minus iota whole square, and in the denominator we have, here we use minus sign, sorry, this is a plus b and this is a minus b. Clear. So this becomes a square minus b square raised to power 100, this is equals to a plus iota b. Clear. हमने क्या किया, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज किया, 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया. न्यूमरेटर में बन गया 1 माइनस आयोटा को मल्टीप्लाई करना 1 माइनस आयोटा से, तो 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर बन गया. इन द डिनोमिनेटर वी हैव a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, और इज इक्वल्स टू ए प्लस आयोटा बी हो गया. नाउ a माइनस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी का यूज करेंगे तो क्या बनेगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, एंड दिस इज इक्वल्स अपॉन 1 का स्क्वायर
माइनस आयोटा का स्क्वायर होल रेज़्ड टू पावर 100 इज इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b. Clear? Now 1 square is 1, iota square becomes -1. This is -2 iota upon 1 square is 1 minus iota square is -1 and raised to power 100 is equals to a plus iota b. क्लियर? +1 से -1 कैंसिल होगा, डिनोमिनेटर में हमारे पास बन जाएगा 2 और यहाँ पर रेज़्ड टू पावर 100 इज इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b. 2 से 2 कैंसिल होगा, -1 आयोटा यानी माइनस आयोटा रेज़्ड टू पावर 100 इज इक्वल्स टू व्हाट, a प्लस आयोटा b एंड माइनस की पावर 100 -1 की पावर इवन नंबर क्या देता है, प्लस देता है. आयोटा रेज़्ड टू पावर 100 कितना होता है, यानी कि इसको हम आयोटा की पावर 100 भी ले सकते हैं क्योंकि -1 रेज़्ड टू पावर 100 इज इक्वल्स टू +1. Minus raised to power an even number becomes plus. Okay, and iota raised to power 100 is here and this is equals to a plus iota b. Now what is the value of iota raised to power 100? Iota raised to power 100 को लिख सकते हैं हम iota की पावर 4 raised to power 25 और is equals to what, a plus iota b. iota की पावर 4 होता है 1 की पावर कुछ भी हो क्या होता है 1 is equals to a plus iota b. अब यहाँ पर सिर्फ रियल नंबर है, इधर कोई इमेजिनरी पार्ट नहीं है, तो इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू क्या होगी, इसका मतलब 0 आयोटा. कंपेयरिंग करेंगे तो ऑन कंपेयरिंग करेंगे तो क्या होगा, a की वैल्यू किसके इक्वल होगी, 1 के इक्वल, और b की वैल्यू किसके इक्वल होगी, 0 के इक्वल होगी. सो इन दिस वे वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b. हमें लिखना है a, b, तो a, b कितना हो गया हमारा 1, 0. सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर. क्लियर? The next question we have is if x plus iota y raised to power 3 is equals to u plus iota v, then prove that u upon x plus v upon y is equals to u upon x plus v upon y is equals to 4 into x square minus y square. That we have to prove. Now देखिए क्या गिवन हमें, x प्लस आयोटा y गिवन क्या है, हमें गिवन है कि x प्लस आयोटा y रेज़्ड टू पावर क्यूब की होल क्यूब इज इक्वल्स टू u प्लस आयोटा v. नाउ वी कैन यूज द आइडेंटिटी, यूजिंग द आइडेंटिटी a प्लस आयोटा b होल क्यूब, a plus b whole cube is equals to what, a cube plus b cube plus 3ab into a plus b. क्लियर? तो क्या होगा भाई, a की जगह हमारे पास क्या है x, तो x का क्यूब प्लस y का क्यूब आयोटा y का क्यूब, सॉरी b की जगह क्या है हमारे पास आयोटा y प्लस 3 इंटू एक्स इंटू आयोटा y इंटू एक्स प्लस आयोटा y. दिस इज इक्वल्स टू u प्लस आयोटा v. क्लियर? नाउ दिस इज एक्स क्यूब प्लस आयोटा का भी क्यूब हो गया हमारे पास और y का भी क्या हो गया, क्यूब हो गया. 3x आयोटा y को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x का क्या हो जाएगा स्क्वायर आयोटा y प्लस 3x आयोटा y को आयोटा y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x आयोटा का स्क्वायर भी हो गया और y का भी क्या हो गया स्क्वायर. दिस इज इक्वल्स टू u प्लस आयोटा v. नाउ दिस इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब, आयोटा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है माइनस आयोटा इंटू वाई क्यूब, फिर क्या होगा प्लस आयोटा 3x स्क्वायर और y, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है हमारे पास -1 इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू u प्लस आयोटा v, बिकॉज आयोटा क्यूब इज इक्वल्स टू व्हाट माइनस आयोटा एंड आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट -1. नाउ इफ वी राइट दिस अगेन, so this becomes x cube minus iota y cube, then plus iota 3x square y, and then plus minus becomes minus 3x y square is equals to what, vu plus iota v. Now if we compare real and imaginary part, तो रियल पार्ट देखिए क्या है, रियल पार्ट को इकट्ठा करें तो एक्स क्यूब रियल पार्ट है जिसके साथ कोई आयोटा नहीं है,
ये भी रियल पार्ट है, इसके साथ भी कोई आयोटा नहीं है, 3xy²। एंड दिस, इन दोनों पार्ट्स में देखिए आयोटा है, क्लियर, दिस इज द इमेजिनरी पार्ट, इन दोनों से हम आयोटा कॉमन लेते हैं, तो पहले प्लस की टर्म को लिख लेते हैं। इसके पास क्या बचेगा आयोटा कॉमन लेने के बाद, इसके पास बचेगा 3x²y, और इसके पास क्या बचेगा आयोटा कॉमन लेने के बाद, -y³, एंड दिस इक्वल्स टू व्हाट, u प्लस आयोटा v। क्लियर। नाउ इफ यू कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, अगर हम रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल रख दें और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी, ऑन कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट एंड imaginary part, we get what we get भाई, कि रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल रखेंगे तो हमें पता चला कि x³ माइनस 3xy² की वैल्यू किसके इक्वल है, u के इक्वल है। एंड एट द सेम टाइम इफ यू कंपेयर इमेजिनरी पार्ट विद द इमेजिनरी पार्ट, तो हमें पता चला कि v की वैल्यू किसके इक्वल है भाई, v की वैल्यू है किसके इक्वल, v इज इक्वल्स टू 3x² माइनस y³। अगर हम यहाँ से देखें तो हमें क्या कॉमन मिल रहा है, हमें यहाँ से कॉमन मिल रहा है x, और यहाँ पर बच जाता है x² माइनस 3y², किसके इक्वल भाई, u के इक्वल। क्लियर। और यहाँ से अगर हम निकालते हैं u/x की वैल्यू को, तो u/x की वैल्यू क्या आएगी, ये u और ये x चला जाएगा डिनोमिनेटर में, u/x की वैल्यू बन जाएगी x² माइनस 3y², ये वैल्यू बन गई हमारे पास। क्लियर। सिमिलरली यहाँ से दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, y कॉमन आएगा, y कॉमन आ गया तो यहाँ क्या रह गया 3x² माइनस में क्या रह गया y², y चला जाएगा डिनोमिनेटर में, तो v/y की वैल्यू क्या हो जाएगी, v/y की वैल्यू हो जाएगी 3x² माइनस y², दिस इज द वैल्यू ऑफ v/y। अब हमें क्या करना है, हमें करना है u/x और v/y की वैल्यू को ऐड। सो u/x प्लस v/y, इन दोनों की वैल्यू को हमें ऐड कर रहे हैं, हमारे पास u/x की वैल्यू भी है और v/y की वैल्यू भी है। u/x की वैल्यू किसके इक्वल है, u/x की वैल्यू है x² माइनस x² 3y² प्लस v/y की वैल्यू क्या है भाई, 3x² माइनस y², सो दिस बिकम्स व्हाट, 4x² माइनस 4y² एंड दिस बिकम्स व्हाट, 4 कॉमन फ्रॉम हियर, दिस इज x² माइनस y² and this is equals to right hand side, hence proof। ओके, तो सबसे पहले हमने क्या किया, आइडेंटिटी को ओपन किया, a प्लस बी होल क्यूब, a प्लस बी होल क्यूब को ओपन कर दिया हमने, a प्लस बी होल क्यूब को ओपन किया, इसे सिंप्लीफाई किया, रियल पार्ट को अलग कर लिया, इमेजिनरी पार्ट को अलग कर लिया, और राइट हैंड साइड में गिवन है u प्लस आयोटा v, रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल पुट कर दिया, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के इक्वल पुट कर दिया, यहाँ से x कॉमन आ गया और ये x चला जाएगा डिनोमिनेटर में, u/x की वैल्यू आ गई हमारे पास। सिमिलरली यहाँ से हमने v/y की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया और फिर हम दोनों को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ऐड करने से ये किसके इक्वल हो गया, राइट हैंड साइड के इक्वल बन गया। क्लियर। सो इन दिस वे वी कैन सोल्व द प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। Now, what is the additive inverse of a complex number? Additive inverse of a complex number, Z। क्या कह रहे हैं कि what is the additive inverse? अब additive inverse क्या होता है, किसी भी नंबर का additive inverse क्या होगा, Z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ओके, और कह रहा है कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर में कितना ऐड किया जाए, ठीक है, ताकि वैल्यू किसके इक्वल हो जाए, 0 के इक्वल हो जाए। ओके, किसके इक्वल हो जाए, 0 के इक्वल। या फिर देखिए क्या है, किसी एक वैल्यू के अंदर z ऐड करने से वो वैल्यू किसके इक्वल बन जाए, 0 के इक्वल बन जाए। क्लियर। यानी कि मैं मान लेता हूं कि, मान लीजिए लेट, एक सेकंड के लिए मान लेता हूं कि एक x है, ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है x, ठीक है, या मैं Z1 मान लेता हूँ, इसे Z1 मान लेता हूँ। लेट Z1 इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ Z, इनवर्स ऑफ Z।
तो कह रहा है कि मान लेते हैं कि एक सेकंड के लिए Z1 क्या है, Z का एडिटिव इनवर्स है, यानी कि Z और Z1 को ऐड करने से इसका मतलब क्या बनेगा, 0 बनेगा। या Z1 में अगर Z ऐड कर दे तो भी क्या बनेगा, 0। अब हम कह रहे हैं कि Z1 क्या है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है कि Z प्लस Z1 इज इक्वल टू 0, इट मीन्स Z1 इज व्हाट, Z1 इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर Z। क्लियर। अगर क्या हो कि Z प्लस Z1 0 के इक्वल हो जाएगा, 0 कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल हो जाएगा, तो Z1 को Z का एडिटिव इनवर्स कहा जाएगा। अब यहाँ से अगर हम Z1 की वैल्यू निकालें, हमने कहा कि Z प्लस Z1 किसके इक्वल भाई, 0 के इक्वल, तो Z1 की वैल्यू क्या हो गई, माइनस Z। इट मीन्स द माइनस Z इज इक्वल टू व्हाट, द एडिटिव इनवर्स ऑफ Z, एडिटिव इनवर्स ऑफ Z। क्लियर। क्या है कि अगर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, हर बार माइनस Z होगा। क्या होगा, माइनस Z। ओके, तो देखिए क्वेश्चन कैसे आएगा, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ, फाइंड एडिटिव इनवर्स ऑफ 3 प्लस आयोटा अपॉन 3 माइनस आयोटा। हमें इस कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इनवर्स निकालना है। सो अवर Z इज हियर 3 प्लस आयोटा अपॉन 3 माइनस आयोटा। हमने देखा डिनोमिनेटर में क्या है, सबसे पहले हमें इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। जब भी हमारे पास क्वेश्चन होगा कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो हमें सबसे पहले इसे a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लेके आएंगे। तो अगर देखा कि डिनोमिनेटर में क्या है, आयोटा प्रेजेंट है, तो हमें क्या करना होगा, रैशनलाइजेशन करना होगा। तो ऑन रैशनलाइजिंग क्या होगा रैशनलाइजेशन करने से भाई, Z इज इक्वल टू 3 प्लस आयोटा अपॉन 3 माइनस आयोटा इंटू 3 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस आयोटा। सो इन द न्यूमरेटर वी हैव 3 प्लस आयोटा होल स्क्वायर, and in the denominator we have a minus b into a plus b. So this is a square minus b square. Clear? So the value of Z is equals to 3 plus iota whole square, a plus b whole square, 3 square, then plus iota square, then plus 2 into 3 into iota upon 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9 हो गया, माइनस आयोटा का स्क्वायर कितना होता है, -1 हो गया। क्लियर। तो Z किसके इक्वल बन गया, 3 का स्क्वायर 9, आयोटा स्क्वायर के लिए -1, 3 into 2 6 आयोटा अपॉन here we have 10. So Z is equals to what, 9 minus 1 8 plus 6 iota upon what, 10. क्लियर। Z is equals to 8 upon 10, 2 कॉमन ले सकते हैं हम, प्लस 6 अपॉन 10 आयोटा, 2 से कट करना है तो 4 अपॉन 5 बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा 3 अपॉन 5। तो Z किसके इक्वल आ गया, इज इक्वल टू वॉट, 4 अपॉन 5 प्लस 3 अपॉन 5 iota. This is the value of Z and we have to find the additive inverse. So additive inverse is what? Additive inverse of Z is minus Z. तो additive inverse किसके इक्वल होता है, additive inverse Z का क्या होता है, माइनस Z होता है, इज इक्वल टू वॉट, माइनस Z, माइनस ऑफ Z कितना, 4 अपॉन 5 प्लस 3 अपॉन 5 आयोटा, ब्रैकेट में लिखेंगे, माइनस दोनों से आगे मल्टीप्लाई होगा, यानी क्या बन जाएगा, -4/5 -3/5 आयोटा। सो दिस इज द additive inverse of Z, okay, of this complex number. Z is equals to 3 plus iota upon 3 minus iota. Clear? So in the way we can find the value of additive inverse. The additive inverse of Z is minus Z. The additive inverse of Z is minus Z. Now we will discuss about multiplicative inverse of Z. The multiplicative inverse of complex number. Multiplicative inverse of a complex number Z. कह रहे हैं कि मान लीजिए आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z, तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर Z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा। एक कॉम्प्लेक्स नंबर को उसका मल्टीप्लिकेटिव, एक कॉम्प्लेक्स नंबर मान लीजिए मेरे पास है, और उस कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर मैं Z से मल्टीप्लाई करूं और दोनों का प्रोडक्ट अगर 1 के इक्वल बन जाए, किसके इक्वल बन जाए, 1 के इक्वल बन जाए, तो इन दैट केस दैट कॉम्प्लेक्स नंबर इज सेड टू बी द इनवर्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर Z। इनवर्स का मीनिंग एक और भी आप समझ सकते हैं, रेसिप्रोकल करना है आपको, बस करना क्या है,
रेसिप्रोकल। अगर मैं देखो z को 1 by z से यानी कि z के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करूँ, 1/z से मल्टीप्लाई करूँ तो दोनों का प्रोडक्ट कितना आएगा? 1 आएगा कि नहीं आएगा भाई? या फिर मैं 1/z को मल्टीप्लाई करूँ किससे? z से, तो भी प्रोडक्ट किसके इक्वल आएगा? 1 के इक्वल आएगा, क्योंकि z से z तो कैंसिल हो जाएगा। सो द 1/z इज व्हाट? 1/z is 1/z is what? The reciprocal, the multiplicative inverse of the complex number z. Okay, so multiplicative inverse या फिर आप कह सकते हैं कि reciprocal of z is equals to 1/z. Clear? Now the question is find the reciprocal of complex number z is equals to 3 plus 2 iota. So what is the reciprocal of the complex number z? The multiplicative inverse of complex number z is equals to what? 1/z. 1/z की वैल्यू क्या गिवन है हमें? 3 plus 2 iota. हम क्या करेंगे? अब रैशनलाइजेशन करेंगे। ये कर दे रैशनलाइजेशन, 3 minus 2 iota upon 3 minus 2 iota on rationalization. On rationalization it becomes 3 minus 2 iota से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया हमने। तो न्यूमरेटर में तो बन गया हमारे पास 3 minus 2 iota और डिनोमिनेटर में क्या बनेगा? a plus b इंटू a minus b यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस 2 iota का होल स्क्वायर। ये बन गया कितना? 3 minus 2 iota, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4 और आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा? -1। सो दिस बिकम 3 minus 2 iota अपॉन 13। और अगर हम देखेंगे तो ये अलग अलग करेंगे तो क्या बनेगा? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा अभी हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का वैल्यू। क्लियर? सो दिस इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल्स टू 3 plus 2 iota. Take one more example. Find the multiplicative inverse of the complex number z is equals to 2 plus 3 iota whole square. मान लीजिए मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है और मुझे क्या करना है? इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z क्या होता है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स z 1/z और 1/z की वैल्यू क्या गिवन है हमें? 2 plus √3 iota का होल स्क्वायर। क्लियर? सो पहले हम इसको स्क्वायर को ओपन करेंगे a plus b होल स्क्वायर आइडेंटिटी से। तो पहले क्या होगा? a का स्क्वायर, फिर होगा हमारे पास b का स्क्वायर और फिर होगा प्लस 2 into a into b, 2 into a into b. सो दिस इज इक्वल्स टू 1/2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, आयोटा का स्क्वायर -1 हो जाएगा ना। √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा? 3 बनेगा। आयोटा का स्क्वायर कितना होता है? -1 होता है। 2 2 जा 4, 4 into √3, 4√3 into what? Iota. So here this is equals to 1/4. This becomes -3. 3 into -1 becomes -3. 4 - 3 becomes 1 plus 4√3 iota. अभी हमने देखा कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमने निकाला तो इतना आ गया, परंतु हमने देखा कि यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या है? आयोटा। तो हमें क्या करना होगा यहाँ पर? रैशनलाइजेशन। तो 1 minus 4√3 iota डिवाइडेड बाय 1 minus 4√3 iota. नाउ 1 को मल्टीप्लाई करेंगे अब 1 minus 4√3 iota से तो क्या बनेगा? 1 minus 4√3 iota ही बनेगा। ओके, डिनोमिनेटर में क्या होगा? a plus b इंटू a minus b। क्या होगा? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, 4√3 iota का स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल्स टू 1 minus 4√3 iota डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर 3 है ना। 16 into 3 कितना हो गया? 48 और आयोटा का स्क्वायर क्या होता है? -1। क्लियर? -48 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z इज इक्वल्स टू 1 minus 4√3 iota divided by 49 here. So the multiplicative inverse of z is equals to 1/49 minus 4√3 iota upon 49. So this is the reciprocal of the complex number z is equals to 2 plus √3 iota whole square. तो सबसे पहले
क्या करेंगे हम, या तो हम पहले से ही 1/z लिख दें, या फिर हम पहले इसको सिंप्लीफाई कर लें, a प्लस आयोटा b की फॉर्म में ले आए, फिर बाद में इसका रेसिप्रोकल निकाल लें, या फिर डायरेक्ट पहले रेसिप्रोकल कर दिया 1/z और बाद में सिंप्लीफाई कर लिया हमने ना. क्लियर? So in this way we can solve the problems based on multiplicative inverse or reciprocal of a complex number. Thank you.